1971 ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੋਮੋਡੋਰ ਜੇਐਲ ਭਾਰਗਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸੀਗੇ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਗਏ। 71 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ, तो माई एयरक्राफ्ट कॉट फायर। जब हवाई जहाज आगे लग गई तो आई हैड नो चॉइस। ट्राई किया सी मैं वापस आने का, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकिया, आ नहीं सके हवाई जहाज, बिकॉज जे मैं होर ठहर जाता तो शायद मैं क्रैश ही कर जाता हवाई जहाज नाल। जिस हाल के मैं बेल आउट किया सी उत्थे जे ऑटोमैटिक सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस काम नहीं करे तो गुड बाय। ਕਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ? मैं जी उस वे HF-24 उड़ा उन्होंने मारूद कहने आजकल तो म्यूजियम च है, बट that's what it is। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਏਅਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ F-16 ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸੀਗੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਆਲਦੋ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਸੇਮ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1971 ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੋਮੋਡੋਰ ਜੇਐਲ ਭਾਰਗਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸੀਗੇ ਉਧਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਰਨੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਰਗਵ ਸਾਹਿਬ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। गुड मॉर्निंग ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਕਲੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ 1971 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਸੀ 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਮ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇਸੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? 5 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, 5 ਦਸੰਬਰ 71 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੌਟੀ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੌਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੈਟ ਹਿਟ ਮੀ। तो माई एयरक्राफ्ट कॉट फायर। जब हवाई जहाज आगे लग गई तो आई हैड नो चॉइस। ट्राई किया सी मैं वापस आने का, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकिया, आ नहीं सके हवाई जहाज, बिकॉज जे मैं होर ठहर जाता तो शायद मैं क्रैश ही कर जाता हवाई जहाज नाल। तो मैं डिसीजन ले लिया कि इस वे हवाई जहाज छड़ना इजैक्ट मतलब बेल आउट पैराशूट से कॉकपिट चो बाहर आना है। वो ऑटोमैटिक होता है जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈ ਬੜਾ ਲੋ ਸੀਗਾ, ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਈਟ ਜਿਸ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, देयर इज नो नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। बट मेरे केस च शायद सारे सब कुछ ऑटोमैटिक काम किया, ठीक किया। फिर भी मैं जब तक पैराशूट पे उतरिया ना, पैराशूट मेरा खुलिया तो मैं जमीन तो मतलब 5 फुट ऊपर ही सी, बस समझो सिर्फ 5 फुट? 5 फुट भी नहीं, 5 फुट तो घट, मतलब आई जस्ट टच द ग्राउंड। पैराशूट ओपन दे नाल ही नाल टच किया मैं, वो भी थोड़े जे होर हो जाता ना तो आई वुड हैव गॉन लाइक ए स्टोन, क्रैश ही हो जाना सी बिल्कुल। तो फिर पता नहीं क्यों होता तो आई डोंट नो, लेकिन शायद कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता, बिकॉज जिथे मैं डिग्या है ना वो रेत ही रेत सी, टीले सी ना उत्थे, तो रेत नाल फर्क पै गया। मेरी स्पाइन च भी डैमेज तो होया सी, लेकिन उस वेले मैनू नहीं पता लग गया, नहीं पता लग गया। जब मैं बेल आउट किया जी तो मैनू ऐ लगता सी भाई कोई थले होएगा, आर्मी होएगी पाकिस्तान दी, क्यों मैनू ये तो पता सी मैं पाकिस्तान के अंदर है, ये तो मैनू पता सी।
ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ Land ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਸੀ। Sure, 100%, because I was very close to target. अटैक करके तो मैं वापस ही आ ही रहा था, तो within 1 minute I ejected, बेल आउट कर गया ना, तो पाकिस्तान के अंदर ही सी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ਕਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ? मैं जी उस वेले HF-24 उड़ा रहा, उन्होंने मारूद कहने आजकल तो म्यूजियम च है, बट that's what it is। बड़ी पुरानी गल है जी, 50 साल होने लगे। अच्छा, तो जब मैं लैंड किया ना जी, तो हवाई जहाज जो मेरा हैगा वो एक टीले के अंदर चला गया सी अद्धा, और उसके अंदर एमुनिशन सी गया ना, वो एक्सप्लोड कर रहा सी। अब वो जो रॉकेट शॉकेट बॉम्ब, दो एक बॉम्ब सन रॉकेट सी, एक तो बॉम्ब मैं गिराता सीगा, बट रॉकेट 2-4 सन जो रह गए, और गन जो गन होंगी है ना जी, गोलियां ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕੈਨਨ वो भी सीगा काफ़ी, तो वो फायर कर रहे सी और आवाज़ आ रही सी, तो मैं क्या भाई ये थां हैगी थोड़ा डेंजर है, तो मैं अपना फटाफट पैराशूट बंद करके ना लपेट के, और अपना सर्वाइवल पैक होंगे साडा एक, उन्होंने चक के मैं वो पासे आप 50 मीटर 100 मीटर उधर चला गया, उधर सेफ हो गया। उधर जाके ना फिर मैंने देखा कोई है ही नहीं, मैं कल्ला ही, तो मैं क्या भाई हद है, तो खैर कोई गल नहीं, अच्छा ही है मेरे लिए, चंगा सीगा, कोई सीगा नहीं तो फिर जैसे विक्रम अभिनंदन नाल होया मेरे नाल भी हो सकता सी। खैर ਮਤਲਬ ਮੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ? ना जी कोई नहीं, बंदा ही नहीं कोई। ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। हाँ उन्होंने मॉब मिल गया, मॉब होंदा खतरा वाला। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਲੂਡਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ? टोटली मैं तो कहना कोई आए नहीं, 2 घंटे तक नहीं आया, मैं दस तुहानू। तो जब मैं बैठा, मैं सवाल पैक खोलिया, उस तो पहले मैं सोचा भी मैं है किधर। अब मेरा मैप तो हवाई जहाज से चला गया, एक दूजा मैप साढ़े होंदा इत्थे, वो भी पता नहीं उड़ आ गया। फिर मैं कोशिश की, मैनू मैप नहीं लभ्या। दैन मैं क्या सवाल पैक से मैप होना, मैप उत्थे भी नहीं सीगा अनफॉर्चुनेटली। पर सवाल पैक खोलिया, जब खोल ही रहा सी तो मेरा जो लीडर है ना वो आ गया ऊपर, उन्हें 2 चक्कर किए, मैं उन्हें नाल वेव किया, बिकॉज हले तक मेरे को वो सवाल पैक से होंदा ना साडा हिसाब किताब, वो खुलिया नहीं सी, तो वेव किया। मैं सोचा शायद उन्होंने मैंने देख लिया है, लेकिन उन्होंने देखा नहीं सी, और मैं सोच रहा सी उत्थे जाके उन्हें कहेंगे हेलीकॉप्टर से मैनू चक लेंगे इतों। खैर वो चला गया जी, वापिस चला गया, उदा भी हवाई जहाज पिछों स्मोक कर रहा सी। तो जब वो बेस से गया तो उन्हें उसे कहता जी ब्रदर भार्गव, मैनू कहने आए फोर्स से ब्रदर कहने कि ब्रदर भार्गव, तो हवाई जहाज नाल ही गया, लगता नहीं उत्थे तो मैं देखा नहीं, उसे मैं सोच रहा हेलीकॉप्टर आना है, उन्होंने देख लिया शायद ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ देख लिया। अब मैं उदी वेट कर रहा सी, और सॉयल पैक खोल के मैं फटाफट अपना सामान जो मैंने चाहिए सी, लाइक छोटी बॉटल पानी दी 100 ml दी 4 बोतल सन, कुछ चॉकलेट सी, कुछ स्टोव सी, टॉर्च सी, डैगर सी, और छोटी छोटी चीज स्लीपिंग बैग सी, वो मैं सिलेक्ट करके ना कंपस सी, कंपस वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन दस बिल्कुल डायरेक्शन दस दिया। तो सब कुछ मैं एक बैग होंदा है उत्थे साडा छोटा जिहा, उसके अंदर पा के ना सर्वर पैक नूं मैं छोड़ता उत्ते, और मैं बैग नाल तैयार बैठा सी। नाइनटीन 1971 इंडो पाक वॉर ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੋਮੋਡੋਰ JL ਭਾਰਗਵ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ से ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਗਏ। 71 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ, तो माई एयरक्राफ्ट कॉट फायर, जब हवाई जहाज आगे लग गई तो आई हैड नो चॉइस, ट्राई किया सी मैं वापस आने का, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकिया, आ नहीं सके हवाई जहाज, बिकॉज जे मैं होर ठहर जाता तो शायद मैं क्रैश ही कर जाता हवाई जहाज नाल। जिस हाल ते मैं बेल आउट किया सी, उत्थे जे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस काम नहीं करे तो
गुड बाय। ਕਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ? मैं जी उस वेले HF-24 उड़ा उन्होंने मारूत कहने आजकल तो म्यूजियम च है but that's it, that's what it is। नौ बजे सन जी उस वेले 9:15 इंडियन टाइम ਮਾਰਨਿੰਗ मॉर्निंग और मैं उत्थे फिर फटाफट अपनी घड़ी नूं ना पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम चेंज करता। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਸਰ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਘੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਘੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, मैं सोचा कि हेलीकॉप्टर आ जाएगा और अगर कोई आदमी आया, कोई भी आवाज़ मैनू नज़र आई तो मैं दौड़ लेना हूँ। मैं उसे सरेंडर थोड़ी करना, ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ। या फिर शाम तक वेट करांगा। जे कोई नहीं आया, हेलीकॉप्टर भी नहीं आया, कोई बंदा भी नहीं आया, तो मैं वेट करांगा इतने शाम, जिथे शामी होएगी मैं चल पाएगा। कंपस मेरे को ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। बॉर्डर वाले पास 090 डिग्री होंगे जी साढ़े, वो ईस्ट पाकिस्तान हिंदुस्तान है, पाकिस्तान वेस्ट से हैगा, तो नो प्रॉब्लम, आई हैड नो इशू, मैंने कोई कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब 12 बजे करीब कुछ आवाज़ आई मैनू, तो मैं दौड़ लिया। मैं नहीं सोचा भी कौन है क्या है, मैं दौड़ लिया ईस्ट पूर्व दिशा में दौड़ता गया, पानी पीता गया, दौड़ता गया। अबाउट मैं 1:30 तक दौड़ा, पैदल चलते रहे। बीच में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। एक तो मैंने देखा गर्मी थी, तो मैंने अपना जी सूट होता नहीं साडा, वो उतारता। थले असी सिविल ड्रेस पा के गए थे, तो सिविल ड्रेस सी एक मेरे को जैकेट सी, ठीक है, तो फर वाली है ना, सर्दियाँ मौसम थी, वो पा ली उत्ते और वो सामान अपना बैग अपने सो नॉर्मल बन और गया वो उन्होंने रोल करके ना जी सूट नू मैं उत्थे झाड़ी च छुपाता कि भाई इतना डंप करता। बात खत्म। जल पे अब बीच में और भी मेरे को स्नेक्स बड़े थे उस वक्त, मेरे को बाइक सांप बड़े काफ़ी, मतलब एवरी एक टीला क्रॉस करो दूजे से टीले सैंड सी ना शायद, सैंड होगी उते, सैंड बड़ी ज़बरदस्त और चलन भी मुश्किल सी। खैर जो हो गया 2 बजे करीब ना मेरा पानी ख़त्म हो गया। तो मैं क्या भाई हुण की करिए, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬੋਟਲਸ ਤੁਸੀਂ 4 बोतल ख़त्म कर ली मैं, वो गलती कर रही है, मैं फटाफट पी गया ना, क्यों चल रहे सी और रेती चल रहे थे, प्यास ज़्यादा लग रही सी, बट मैनू ये पता नहीं सी कि पानी की मैनू बहुत लोड़ पैनी है बाद च। और वही होया 2:15 के करीब पानी ख़त्म हो गया, मेरा गला सूख गया। तो मैं क्या यार हूँ मैं लेट ही गया, उधर गिर ही गया, ऑलमोस्ट थक गया। तो फिर ताकत आई थोड़ी जैसे विल पावर, मैं क्या उठ के गया, फिर एक टीला सीखा, वो चढ़ के गया, मैनू एक गाँव नज़र आया। मैं क्या चलो इधर चलते हैं, साडा वो होएगा, मतलब पता करते उत्थे पानी मिल जाएगा ना, मैनू पानी चाहिए सी। लो जी मैं 100 गज भी नहीं गया, फिर मैनू ताकत ही नहीं सी जानती, ऐ समझा कि मैं हूँ मरण आ रहा है, इतना ज़्यादा बहुत बुरा हाल जवाब सी दे मेरा, रही सी। पानी बड़ी जरूरी है। फिर लकीली मैं देखा एक हट सी उत्थे वैस्ट साइड से थोड़ी जी उत्ते चढ़ के टीले दे मैं चढ़ गया जी, खैर करके मैं चढ़ गया ऊपर। चढ़ के वहाँ एक बंदा खड़ा सी, मैं उन्होंने कहता ही वॉज मुस्लिम, तो उसने कहा वालेकुम। तो मैं कहा मुझे पानी चाहिए। कि कौन हो? मैं फ्लाइट मंसूर अली, पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट हूँ, मुझे पानी चाहिए। सो मंसूर अली ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਤਾ? मैं अपना नाम वो तो सोच के गया सी, यही दसूंगा। वो पहले ही असी स्कॉन से डिस्कस किया सी, भाई कोई फंस गया, मॉब से फंस गया, कुछ फंस गया इधर उधर, हो सकता है ना, वो पायलट की जिंदगी को पता नहीं लगता। तो एटलीस्ट ना तो दसो पहले मंसूर अली, बाद च देखांगे वो की होंदा है।
पहला अपना नाम दसता तो फिर तो कुटाई होनी है। तो खैर वो होया जी, मैं गया तो उन्हें कहा पानी तो नहीं है। मैं कहा पानी तो चाहिए, कहते नहीं है। तो मैंने देखा कैटल जो है ना, गाय भैंस का पानी होंगे उत्थे बनी बनी होंगी अगे, वो पानी ना फुल सी। तो मैं कहा ए पानी है तो सही, कहते ये तो ऊँटों का पानी है। तो मैं पी लूँ? तो उन्होंने कहा पी लो। तो मैं जी पी के और अपना मुंह पे छिड़का पानी, को जान में जान आई मेरे। और मैंने अपनी छोटी बोतल थी ना चारों, वो भर ली अगे वास्ते। और फिर उन्होंने मैं अपना पर्स कढ़ लिया, वॉलेट, उहदे च मेरे को 300 रुपये सन पाकिस्तानी। उन्हें करके 10 रुपये मैं उन्हें पढ़ा दिया। जब उन्हें उहदे सामने मैं ऐ करके अपना पर्स खोलिया तो पाकिस्तानी करेंसी सी। उन्हें यकीन हो जाए, उन्हें यकीन हो गया, थोड़ा बहुत हो गया होना। फिर कहते आप इधर जा रहे थे, उधर तो ये तो हिंदुस्तान की तरफ जा रहे थे। मैं कहा नहीं वो उधर हेलीकॉप्टर आना है, हम हेलीकॉप्टर आएगा हम चले जाएंगे, लेकिन किसी को आप मत बताना कि मंसूर अली आया था यहाँ। तो मैं चल पड़ा। अब हाँ, उससे पहले मैं उससे पूछा ये गाँव कौन सा है। उसने कहा ये गाँव है पिरानी की पार। पिरानी की पार। वो पुरानी की पार जब सुने तो मैं कहा ओ गॉड, मैं तो बहुत साउथ से आएगा, मैं तो नॉर्थ जाना है। तो मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और फिर मैं चल पे आया। तो हूँ मेरा मोराल ठीक हो गया सी, ताकत भी आ गई सी, पानी पी लिया, मेरा बाहर भी लिया। हूँ मैं पानी एक एक घोट करके पी रहा सी, चलता गया। मैं ख्याल 3 बजे गए सन, 3 तो साढ़े 4 पौने 5 तक मैं चलता गया। फिर मैं देखा कि अगे ना प्लेन है, पहले टीले सन, सैंड ड्यून आफ्टर सैंड ड्यून, अगे प्लेन सीगा। मैं क्या ना हाले सनसेट हो रहा है, 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लग जाएगा मैक्सिमम। तो मैं उसे लेट गया थले। जैसे मैं लेटा 3 बंदे आए, उन्होंने देखा और मेरे को आगे कहने कौन है। मैं हैरान हो गया, मैं ये किसों आ गए। मैं क्या मैं फ्लाइट मंसूर अली, पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट। मैं रिपीट करता। कहते यहाँ तो आप उधर जा रहे थे हिंदुस्तान की तरफ। मैं नहीं, हिंदुस्तान तो किधर है, हिंदुस्तान इधर थोड़ी है, ये तो हमारा हेलीकॉप्टर आएगा तो उसके बाद हमें ले जाएगा कराची। कि नहीं आप हमारे साथ गांव चलिए। गांव को गोट कहते थे, गोट कहते हैं उधर सिंध में। तो गोट चलो, तो मैं गोट क्या होता है पता लगे, गोट बाद में पता लग गया कि गांव होता है। तो मैं उनके साथ, मैंने उनसे पूछा, मैं क्या वहाँ कोई पुलिस स्टेशन है? कहते नहीं। फिर मैं क्या वहाँ रेंजर्स हैं आसपास? कहते नहीं। तो मैं क्या फिर उन चल दे, कोई फर्क ही नहीं पैंदा, बिकॉज मैं तो निकल डर नहीं है। हाँ नहीं निकल जाना, सनसैट होया नहीं, मैं दौड़िया नहीं। ये फट थोड़ी सकते मैनू पता सी नहीं फट सकता। गाँव वाले पता ही नहीं होना हो की रहा। तो गाँव च गया मैं, तो उत्थे काफ़ी लोग औरतां बाहर रोटियां बना रहे सन। वो मेरे ख्याल बॉर्डर एरिया तो ना इधर आ गए थे, पीछे आ गए थोड़े। तो उसने चलते चलते कहा सी मैं तुसी 7 कोस हो पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर तो 7 मील। हाँ वो जिथे असी सीगे। तो मैं क्या 7 कोस तो बहुत होंदा है, वो इत्थे तक उत्थे तक थोड़ी जाना सी, अजे हेलीकॉप्टर आना सी, तुसी ले आए। कि नहीं मैं क्या रेंजर्स कितनी देर तक आ सकते हैं? कहते 2-3 घंटे लगेंगे। मैं और भी खुश, कॉन्फिडेंट। मैं क्या हूँ तो 2-3 घंटे जब मैं इतने थोड़ी बहना। जब मैनू उत्थे खार से बिठाता तो एक हेडमास्टर आया और मेरा सवाल जवाब कर रहा सी। उन्हें कहा आप कौन है? मैं कही मंसूर अली। कहाँ के हो? मैं कहा जी कराची से आया। नहीं आप रहते हैं कहाँ के हो? मैं कही मैं रावलपिंडी का। बोलता अब उसने सवाल पूछा रावलपिंडी में कहाँ रहते हैं, स्पेसिफिकली दसिया। तब मैं कहा यार रावलपिंडी ने कहाँ बताऊँ। तो मैं कहा माल रोड पे, और माल रोड है वहाँ, वो बात से पता लगे लक्की सी। तो यहाँ से माल रोड उन्होंने दसा ही सी कुछ, क्यों जहाँ तुसी शक हो गया ना तुहानू, तो उन्हें भी शक कर देना कि ये रुक क्यों रहा है। खैर
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, मैं क्या उन्होंने कहा बाय द वे वो हेडमास्टर मेरे को कहते आप तो हिंदुस्तानी गांव में हैं। अब मेरे को सब पता था, मैं क्या चलो बुद्धू बना रहा है मेरा, कोई गल नहीं, मैं हिंदुस्तान में हूँ मैं। कहते हाँ, मैं क्या मैंने पाकिस्तान जाना है, आप मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो नहीं नहीं आप पाकिस्तान में ही हैं, बैठिए बैठिए। तो मतलब ये था कि ड्रामेबाजी हो रही थी थोड़ी बहुत, फसा रहे थे वो। हाँ। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੱਟ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। तो हट 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, झोपड़ी ਸੀ, कबर्ड सी, तो उत्थे मैंने बिठाता। फिर मैं की कहता, मैं कि भाई हुण निकलना तो है ही, तो मैं अपनी बोतल पानी दी रखी जेब च, एक डैगर है ना वो रख लिया, बस। चाकू चाकू रख लिया, वो रख ली। मैं ख्याल नहीं रहा, मैं बाकी सामान मैं क्या लेके जा ही नहीं सकता, बिकॉज कहाँ मैं बैग रखा तो पता लग जाऊगा भी इसके दौड़ने की कोशिश कर रहे, तो बैग उत्थे छड़ता मैं, और सारे सामान बच्चे नूं बुलाया, उत्थे बच्चे सन काफ़ी, मैं क्या लो लो सब नूं बांटता मैं। अब मैं रेडी सी जान नूं, 7:45 हो गया सी, ना 7:30 हो गया, 7:25। तो 9 बजे तो तुसी लैंड होए, 7:30 हो गए शाम 7:30 हो गए शाम 7:25। कहते चाय पीनी है, तो मैं क्या टाइम तो है, मैं चाय पी लेते हैं। गलती, मैं हाँ जी पिला दो, ना नहीं करनी, पिला दो। चाय लेके आ गए जी, 10 मिनट चाय आ गई। 7:40 चाय पी, चाय पीने के बाद दूसरा कप भी ले लिया उन्होंने, वो पीता गया। मैं क्या अब निकल जाऊंगा चाय पीने के बाद, और बस जी 2 मिनट के अंदर अंदर वो रेंजर आ गए। ओहो, मेरा तो मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। मैं क्या एक ही हो गया, पिंड वाले ने बुला ली सी, बुला लिया उन्होंने, मैनू गलत है 2 घंटे, वो जल्दी आ गए, जा लिया तुहानू जो भी है। फंस गए। जब रेंजर आ गए तो रेंजर ने पहला सवाल ये किया, कौन हो? मैं फ्लाइट मंसूर अली। कि टाइम क्या हुआ साहब? मैं टाइम ये देख लो, एक गाड़ी दिखाई मैं, उन्होंने देखा जब तो दसा ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। कम इत्थे कम आया, उन्हें टाइम देखा, उन्हें कि भाई ये तो पाकिस्तानी है, लगता नहीं ले है। क्यों पाकिस्तानी अफसर जो है ना जी, वो आप ऊपर नहीं करते उन्होंने गल, वो जवान सी गाली से पहले काम बात नहीं करते हैं, वो बात से पता लगे मैंने। तो मैं आप, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? उन्हें कहा भी ये तो कुछ गड़बड़ है, तो शक तो उन्हें हो गया सी। तब वो 10 मिनट्स के बाद, 15 मिनट के बाद उसने जी सामान मंगवाया जो मैंने दिया था बच्चों को, वो मंगवाया। फिर मेरे को मेरी तलाशी ली कि आपके पास कुछ है, मैं कहा नहीं, देख लो चेक कर लो। तो उसने डैगर वो चाकू निकाल लिया, यहाँ लटका हुआ था यहाँ ऐसे, और उसके बाद मेरी बॉटल पानी की निकाल ली, मेरी घड़ी निकाल दी। तो उन्हें सामान मंगवाया, देख रहा सी, मेरा डैगर लिया, और डैगर नूं ऐ करके देख रहे। अब मैं लेटिया सी चढ़, मैं देखा, मैं क्या फिर मैं क्या आई वॉन्ट टू गो आउट। तो वो बोले ठीक है जाओ। मैं क्या वेरी गुड। अब मेरे को बॉटल पानी नहीं सन, मेरे को घड़ी नहीं सी, मेरे को कुछ नहीं सी। मैं क्या फिर मेरी चांस लेना है। बाहर गया, 2 रेंजर मेरे नाल, 4 सनो, 2 मेरे नाल। मैं क्या आप सुको, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं मैं आपके साथ ही रहेंगे जी। तो फिर मेरे को ख्याल है, मैं उनके पास राइफल है, मैं क्या कानू पंगे लेने हैं, बाद से देखो कुछ मौका मिलेगा निकल जाएंगे, अभी तो वापस। तो आई कम बैक, केम बैक टू हट, वहीं लेट गया मैं उसी घर च। उसी हट से वापस आ गया। तो आवाज़ आ रही, जब तक समान सुबह देख के ना आवाज़ आ रही नासी रेंजर का, वो मैनू कहता ये तो जी मेड इन इंडिया लिखा है। तो मैं क्या दिखाया तो मेड इन यूके लिखा था। मैं क्या देखो मेड इन यूके लिखा है, इंग्लिश नहीं आती आपको? कहते साहब ऐसा हमें आप पे शक है, हमारा शक दूर करो। तो मैं क्या शक है? कि ये शक है कि आप अच्छा ऐसा कीजिए आप हमें। मैं क्या, तुम अपने अफसर को बुलाओ पहले, कोई शक नहीं है, अफसर को बुलाओ, मैं उसको बताऊंगा कि क्या हम अफसर नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तुम अपने अफसर को बुलाओ। तो मैं थोड़ा एग्जर्ट किया, प्रेशर डाला उस पर, एग्रेशन दिखाया। हाँ। तो उसने बोला देखिए आप हमें तरीके से बता दिए, नहीं तो हमें तरीका आता है पूछने का।
जब उसने ये बोला तो मैं क्या शक है आपको कि आप पाकिस्तानी नहीं हो? तो मैं क्या करूं? मैं क्या मैंने कहा है अफसर को बुलाऊं, बताता हूं, मैं आइडेंटिटी कार्ड है मेरे पास, मैं बता दूंगा उनको कहां से आया हूं। तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं कहा आप पहले बताइए आप कौन है। मैं मतलब कन्फ्रंटेशन करती, कन्फ्रंटेशन थोड़ी हुई। तो बोला आप ऐसा कीजिए, आप हमें कलमा सुना दीजिए। कलमा? अब कलमा तो मुझे नहीं आता था, तो मैंने कहा कलमा, कहते मैं क्या मेरे बहुत दर्द हो रही है पीछे। अब मेरे को नहीं पता कलमा बड़ा छोटा है, तो उन्होंने कहा उसने कहा मैं पढ़ के सुनाऊं, एक लाइन का आप रिपीट करो। तो उसने पढ़ा कलमा, रेंजर ने। हाँ। अब मेरे को वो थोड़ा मुश्किल था, अब तो मुझे आता है लेकिन उस वक्त तो नहीं आता था। तो मैंने कहा गलत बोल दिया तो और भी मुसीबत। तो मैं कहा आवाज़ अली, ऐसा है कि मैं फ्लाइट मंसूर अली खान नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब तो गिव अप कर ही दो, एडमिट कर लिया। हाँ, मैं मंसूर अली नहीं हूँ, मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहरलाल भार्गव हूँ, मेरा नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट JL भार्गव, अब तुमने जो करना है कर लो। जैसे ही मैंने ये कहा जो तुमने करना है कर लो, तो मेरे को सरप्राइज हुआ कि गांव वाले जो थे, जो मेरे साथ बैठे हुए थे, खड़े हुए थे आसपास, उन्होंने कहा लो क्या करेंगे, आप तो हमारे मेहमान हैं, आपने पहले बताना था। तो ये वो रेंजर भी बोला आप पहले बताते, खाना खिला देते आपको, अब रोटी खा के चलते पड़ते हम। मैं क्या कुछ नहीं हुआ जी, बोले आप आराम कर लो। फिर उसने कहा कि फ़ोटो जो आपकी है पर्स में, ये आपके बेगम की है? मैं हाँ बेगम की है, बच्चे हैं, बड़ी अच्छी है फ़ोटो, ये करके उसके बाद जी उसने हमें डिनर खिलाया 11:30 बजे रात को, और उसके बाद हमें कैमल पे बिठा के, मुझे और मेरे साथ एक रेंजर कैमल पे, आगे कैमल था, उस पे एक रेंजर था और पीछे 2 थे, आवाज़ अली पीछे था। और हम कैमल का ये होता है जी, एक तो मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, अक्खा बांधते तो एक हाँ अक्खा बांध, एक हैंड कैफ कर दिया, पीछे बांधता हाथ ऐ करके, और ब्लाइंड फोल्ड जब वो कैमल उठता है ना, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट जो तुम बैठे नहीं कदे कैमल च, वो ऐ करके उधर सिस्टम बड़ा डिफरेंट है, वो बड़ा प्रॉब्लम हुई। तो जब खड़ा हो तो हो गया, बट मैं कभी डिग सकता सी उस ले। तो मैं मोहब्बत अली मेरे नाल सी, मैं मोहब्बत अली ये कैमल जो ऊँट है आपका, ये ऐसे ही उठता बैठता है कि हाँ? मैं क्या मैं तो गिर जाऊँगा। कि नहीं आप ऐसा करो, गोडे लगाओ उसके साथ तो गिरेंगे नहीं आप के साथ लगा। मैं क्या मेरा ब्लाइंड फोल्ड खोल दो ना, मैं अब इसके ऊपर से थोड़ी भागूंगा। और मैं क्या मेरी बैक एक हो गई है, मेरे को दर्द हो रही है, मैं भाग भी नहीं सकता। मैं क्या आप ब्लाइंड फोल्ड खोल दो? क्या नहीं खोलेंगे हम, अक्खा नहीं खोलियां तो नहीं, ना अक्खा खोलेंगे ना तो हैंड कफ खोलेंगे। हैंड कफ कीजिए हैंकी नाल बांध के पीछे, ये भी हैंकी ही सीगा, और तो कुछ सीगा नहीं। खैर चल पे जी, रात 12 सवा 12 निकल गए, रात भर चलते रहे। क्या मिलते? और नींद तो आने का चांस ही नहीं, ना नींद आई और कहाँ गिरे आप। मूवमेंट इतनी ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है, वो तो एक्सेप्ट कर लिया, कोई गल नहीं, बात से तो तुसी Used to it। लेकिन इनिशियल जो बैठना और उसका खड़ा होना ना, वो तो थ्रू आउट मैनू बहुत तंग किया है। एनीवे ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ मतलब उतरे तो उन्होंने सानू बाजरे की रोटी दी, एक छाछ दी, तो मैं तो खाया नहीं, एक गस्सा खाया और बाद से मैं लस्सी वो छाछ पी, उसके बाद भूख ही नहीं लग रही थी। अब मैं छोड़ो पड़े। उसके बाद हम फिर कैमल के ऊपर चढ़े और जाए 11:30 बजे करीब दोपहर को सवेरे कुछ हवाई जहाज़ों की आवाज़ आई। तो मैंने कहा मोहब्बत अली हमारे जो ऊँट हैं उनको नीचे बैठा दो, क्योंकि हवाई जहाज़ के लिए ये टारगेट है, हिट करेंगे ऊपर से, वो करेंगे। उन्होंने ऊँट देखा तो ऊँट पे अटैक करेंगे, कि मैं होता मैं भी करता। तो बोले
आवाज़ अली को उसे आवाज़ दी, आवाज़ अली, ओ भाई नीचे बैठाओ। खैर फाइनली कुछ आर्गूमेंट हुई थोड़ी बहुत, बिठा दिया उन्होंने, बिठा दे। फिर तब तक आवाज़ नज़दीक आ रही थी काफ़ी, तो फिर मैं क्या दूर जाओ, तो कैमल से बाहर निकलो, अबाउट 15-20 फुट आगे जाओ। तो वो हाथ पकड़ के मेरे को आगे ले गए और फाइनली हमें कहीं बैठा दिया, बैठ जाओ। नाइनटीन 71 इंडो पाक वॉर ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੋਮੋਡੋਰ ਜੇਐਲ ਭਾਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸੀਗੇ, ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਗਏ। 71 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ, तो माई एयरक्राफ्ट कॉट फायर। जब हवाई जहाज आगे लग गई तो आई हैड नो चॉइस। ट्राई किया सी मैं वापस आने का, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकिया, आ नहीं सके हवाई जहाज, बिकॉज जे मैं होर ठहर जाता तो शायद मैं क्रैश ही कर जाता हवाई जहाज नाल। जिस हाल के मैं बेल आउट किया सी, उत्थे जे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस काम नहीं करे तो गुड बाय। ਕਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ? मैं जी उस वे HF-24 उड़ा उन्होंने मारूत कहने, आजकल तो म्यूजियम च है, बट दैट्स इट, दैट्स व्हाट इट इज। मैं खड़े बातों बैठ जाऊँ, फिर मैं क्या मैं ब्लाइंड फोल्ड खोल दूँ। बड़ी मुश्किल ना उन्हें खोलिया तो मैं देखा दो हवाई जहाज हमारे ही मारूत HF-24, हाँ HF-24 जो मैं उड़ा रहा वही हवाई जहाज दो थे, वो डाई में थे थोड़ा दूर। उन्होंने कुछ फायर फूर नहीं किया क्यों, उनको टारगेट नज़र नहीं आया होगा। तो उसके बाद वो चले गए, आवाज़ दूर होगी। तो मैं कह अब वो चले गए हैं, अब आप चल सकते हो। भार्गव साहब फिर जेल च लै गए सी शायद ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 दिन बाद 4 दिन ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਲ ਤੇ ਰਹੇ। हाँ 4 दिन कैमल ते रहे, लेकिन उसले जो होया ना उसले बड़ा एक तो दसा ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्थे उसले जद के वो होया, मैं क्या ब्लाइंड फोर मेरा बांध ही रहे थे तो बांध दिया ब्लाइंड फोर, हैंड कफ भी किया हुआ था। तो फाइनली कैमल की तरफ जा रहे थे, उनके जो रेंजर थे ना उस एरिया के, वो मुझे मिलने आ गए। अच्छा। और हाथ मिलाने की कोशिश कर, मैं क्या बंधा हुआ था, उन्होंने हाथ खोला और हाथ मिलाया। फिर वो कहता है कि आप सिविल ड्रेस में हो, गोली मार दे लेनू। अच्छा। लो जी, मैं कह लिया छुट्टी होगी, उन्होंने गोली मार दो इनको। हाँ वो मार भी सकते सी। तो दैट्स होंदा ना, मैं दसा जब तक तुसी आर्मी कोल नहीं जाते ना, आर्मी एयर फोर्स अथॉरिटी कोल, तब प्रॉब्लम ही है। तो उसके बाद से खैर वो बच गया। मैं क्या गोली मारनी है तो मेरा ब्लाइंड वो खोल दो। तो आवाज़ बोला नहीं जी नहीं, आओ इधर आओ, बैठाता मैं कैमल चले गए। बस 2 दिन हो चल रहे यहाँ से हादसे होते रहे उधर। फिर आर्मी हैंड ओवर करता, फिर असी चले गए कराची तो रावलपिंडी, और एयरफोर्स कैंप रावलपिंडी सी, और आर्मी का कैंप आर्मी POW सा ना साढ़े वो लायलपुर से सी। अच्छा। वो बाद से पता लगे सानू, बट रावलपिंडी से भी अलग अलग कमरे से रहे सी। 25 दिसंबर में मिले असी आपस 25 को पता लग गया कि असी वी हैव वन द वॉर। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ escape ਹੋਇਆ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਅਗਸਤ 72 ਚ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਲਾਇਲਪੁਰ, वो भी पकड़े गए बेचारे। टॉर्चर हुआ सर? टॉर्चर हुआ बहुत ज़्यादा, इतना टॉर्चर हुआ वहाँ जो पहले नहीं हुआ था दिसंबर में। बड़ा बुरा हाल किया भजन तो बाद। उन्होंने भजन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ तीनों फड़े गए, वो भी लायलपुर आ गए। लायलपुर साढ़े आर्मी के जवान सन, आर्मी के अफसर। तो बस उसके बाद रहे हम। 3 महीने बाद भुट्टो आ गया। भुट्टो आए तो उन्होंने हमें कहा कि तुम वतन जाओ, छोड़ दिया। तो हम 1 दिसंबर को 72 को वाघा बॉर्डर से हम हिंदुस्तान वापस आए। भार्गव साहब डर लगा कभी इस पूरे सिचुएशन पाकिस्तान च? ओ यस,
थ्रू आउट डर इसलिए था जी, कुछ पता नहीं ना की होएगा। ट्रिगर हैप्पी गार्ड खड़ा हुआ आपके सामने, कुछ दिमाग में आया उसके, क्यों हर फैमिली का रिश्तेदार यहाँ प्रिजनर ऑफ वॉर था इंडिया में। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तानी वॉर दिस साइड, तो हर एक की कोई ना कोई फैमिली मेंबर तो था ही। बिल्कुल। तो वो हमेशा ही कहते हैं आप जाओ तो हमारे भी आए, मतलब उनको ये था। नाइनटीन 71 इंडो पाक वॉर ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੋਮੋਡੋਰ ਜੇਐਲ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸੀਗੇ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਗਏ। 71 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ, तो माई एयरक्राफ्ट कॉट फायर। जब हवाई जहाज आगे लग गई तो आई हैड नो चॉइस। ट्राई किया सी मैं वापस आने का, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकिया, आ नहीं सके हवाई जहाज, बिकॉज जे मैं होर ठहर जाता तो शायद मैं क्रैश ही कर जाता हवाई जहाज नाल। जिस हाल ते मैं बेल आउट किया सी उत्थे जे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस काम नहीं करे तो गुड बाय। ਕਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ? मैं जी उस वे HF-24 उड़ा उन्होंने मारूत कहने आजकल तो म्यूजियम च है, बट दैट्स इट, दैट्स व्हाट इट इज। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ? ਕੋਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ना ਨਹੀਂ ना ना क्यों चेंज करनी है? ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸ देयर, ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਰਿਸੀਵਡ ਅਸ ਵਿਦ ਆਰਮਸ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੀਗਾ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਵਾਜ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਨ ਵਾਜ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜੁਲਾਈ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਤੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਰਿਆ। ਉਹ ਅਨਲੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕੀ ਸੀ ਅਭਿਨੰਦਨ? ਮੌਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। He was, in fact, in the end of it, he was lucky, क्योंकि मॉब ने तो खैर पिटाई करनी है, लेकिन दैट जो पिटाई की वो वायरल हो गया जी, व्हाट्सएप वायरल होने से एक्सपोज हो गया ना कि ही इज अलाइव। बस ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार लाइव हो गया ना, फिर सानू पता, सारी दुनिया को पता लग गया भाई ही इज लिविंग। कुछ नहीं होया, बस खून इधर उधर होया और की कुछ नहीं होया, तो वो बड़ा लकी सी, वो लक है। क्यों देखो जी, कभी कुछ हो सकता है, कुछ भी करता है। आफ्टर ऑल इट्स नॉट ए वॉर, बट वॉर लाइक सिचुएशन तो है ना, तो वो उसमें कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एक बार आप कैप्टिव हो गए तो ऊपर वाले के ऊपर ही। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਭਾਰਗਵ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੋਰਾਲ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਐਨਮੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਰਾਲ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ 4-4 ਦਿਨ 5-5 ਦਿਨ। ਇਹ ਮੋਰਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ये तो ट्रेनिंग है जी, ये तो ट्रेनिंग भी है, प्लस अपना विल पावर भी है, बड़ा ज़रूरी है। देखो मेरा केस बड़ा फ्रीक केस है, बड़ा अजीब और गरीब केस है कि मैं इन्ना चल पिया, इत्थे कोई चलन देंदा उत्थे ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 2 ਮਿੰਟ ਫੜ ਜਾਂਦੇ। ਲੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂ ਆਰ ਕੌਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਯੂ ਆਰ ਕੌਟ ਆਈਦਰ ਬਾਈ ਆਰਮੀ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੌਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੋਈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਂਜਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। वो पंगा हो गया थोड़ा जिहा। मैं सोचा 9 बजे आएंगे, 10-11 बजे, तो मैं तब तक तो मैं पहुंच गया। वो अच्छी है। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ? नेचुरली ग्रोथ तो हुई है ना जी, डेवलपमेंट तो हुई है,
टेक्निकल डेवलपमेंट हुई है, अपग्रेडेशन ऑफ एयरक्राफ्ट हुई है, सब कुछ हुआ है। ये तो होता रहेगा। तो नेचुरली जो हम थे 71 में और जो आज है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी, बिल्कुल। और तैयारी बढ़िया है, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ 에ਅਰ ਕੋਮੋਡੋਰ ਮਿਸਟਰ ਭਾਰਗਵ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ 1 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ।